شربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ کانگریس کے لیے کابینہ میں جگہ خالی، امید ہے کہ اسی سال ریاست کا درجہ بحال ہوگا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ جموں کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھاری برفباری، میدانی علاقوں میں ہلکی برفباری کے ساتھ بارشیں، کل سے تقریباً 8 افراد کی موت۔ موسمی صورتحال کے پیش نظر کئی گاؤں دیہات میں سڑکیں منقطع، بجلی سپلائی متاثر، لوگ پریشان۔ سرمائی تعطیلات میں توسیع اور وادی میں آگ کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ، بانڈی پورہ میں کئی دکانیں خاکستر، اور بھی کئی موضوعات ہیں آج کے شہربین میں ایک وقفے کے بعد۔ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں سیاسی جماعتوں اور ممبران اسمبلی نے بجٹ اجلاس کی تیاریاں شروع کی ہیں۔ ممبران اسمبلی نے کئی پرائیویٹ بلیں اسمبلی میں داخل کی ہیں، جن کو لے کر ایوان میں کافی دلچسپ صورتحال پیدا ہونے کی امید ہے۔ اس دوران پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور اپوزیشن کے لیڈر سنیل شرما کو خط لکھ کر چند اہم بلوں پر تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن اور حکمران جماعت کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق کا ماننا ہے کہ انہیں ایک ساتھ بی جے پی اور پی ڈی پی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ البتہ ہم اسمبلی اجلاس کے دوران سبھی اپوزیشن لیڈران کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں شراب پر پابندی کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر کہا کہ پی ڈی پی بل ایوان میں لائے وہیں بات ہوگی۔ البتہ شراب پر پابندی کا معاملہ نیشنل کانفرنس کے منشور میں نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کانگریس کی کابینہ میں جگہ خالی ہے، ریاست کا درجہ بحال ہوتے ہی کانگریس کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سال رواں میں ہی ریاست کا درجہ بحال ہوگا اور آنے والے بجٹ اجلاس میں وہ اپنے منشور میں شامل کئی مدعوں کو پورا کریں گے۔ کانگریس کی موجودہ حالت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں، آپ کے الائی ہے، مل کے ان کے ساتھ حکومت کر رہا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں ان کی برائی کروں گا؟ کیا کر رہے ہو نا؟ میں 4 مہینے بیٹھا ہوں، 5 سال مکمل کرنا چاہتا ہوں نا، 5 مہینے نہیں۔ تو اسی سے جڑا ہوا سوال، ان کو بڑا شکوہ ہے اور یہ سب میڈیا رپورٹس بھی آئیں کہ عمر عبداللہ نے ہم کو من مطابق کیبنٹ برڈز نہیں دی، من مطابق جو ہم وہ چاہتے تھے کہ ڈپٹی چیف منسٹر ہو اس طریقے کی چیزیں نہیں کی۔ آپ نے کانگریس اور میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بات کر لیں گے۔ فی الحال ان پیٹھ پیچھے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ویسے ایسی بات ہے نہیں۔ سویرنگ ان کے دن ہی باہر آ کے کانگریس کے پی سی سی پریزیڈنٹ نے کہا کہ سوچ سمجھ کے انہوں نے حکومت میں فی الحال شامل نہ ہونے کا فیصلہ لیا ہے جب تک کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ نہیں ملتا۔ They have said so long as J&K is not given statehood, they will not participate in the government۔ اور میں نے ان کے لیے جگہ خالی رکھا ہے، جیسے ہی جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ مل جاتا ہے بیٹھ کے وہ جگہ بھر لیں گے ہم۔ میں اتنا کہاں ویٹ کر رہا ہوں نا، میں تو امید کر رہا ہوں کہ اسی سال ہوگا۔ 5 سال کون ویٹ کر رہا ہے نا، تو اس سال حاصل کرنے کی۔ I mean, and what gives you hope? Conversations with that is between me and چھوڑیے نا، I've signed the Official Secrets Act، تھوڑی باتیں تو ایسی ہی رہیں گی۔ جموں کشمیر میں بجٹ سیشن آنے والا ہے، 6 سال بعد اور زیادہ وقت بعد ایسا ہونے والا ہے۔ آپ کے راجیہ کے لوگ اس بجٹ سیشن میں عمر عبداللہ سے کیا امید رکھیں؟ ہم نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو ہم پورا کرنا شروع کریں گے، سیدھی بات ہے۔ ایک وعدہ آپ کا تھا، آپ کا مینیفیسٹو میں دیکھ رہا تھا عمر صاحب، جس میں آپ نے 3 مہینے کے اندر اندر روزگار دینے کی بات کہی تھی۔ 3 مہینے سے تو زیادہ ہو گئے، تو کیا وہ ہو گیا وعدہ پورا؟ کر رہے ہیں، روزگار دینا شروع کر دیا۔ اگر آپ بتا پائیں کہ کتنا؟ بجٹ میں بتا دوں گا۔ اب بجٹ کا سیشن آ رہا ہے نا، کچھ چیزیں تو سیکروسنٹ ہوتی ہیں نا، بجٹ کی باتیں بجٹ میں ہوں گی۔ میں تو کوئی سیکرٹ ایکٹ سائن نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بجٹ میں کر لیں گے نا۔ بٹ یو ہیو پرووائڈیڈ جابس۔ جابس ہیو اسٹارٹڈ ٹو بی پرووائڈیڈ۔ میں نے ڈاکٹروں کو دیے، میں نے پنچایتی سیکٹریز کو دیے، میں نے بھی آرڈرز دیے ہیں، لیکن میں نے اشتہار نہیں دیے، وہ ہم الیکشن سے پہلے دے دیں گے۔ میرے گورنمنٹ کو دیکھیے نا، کیا ایڈریس نہیں کیا۔ 6 منسٹر ہیں، دیکھ لیجئے، ہم 3 کشمیر سے ہیں، 3 جموں سے ہیں، 1 جموں کے پہاڑی سے ہیں، 2 جموں کے نچلے علاقے سے ہیں، 1 رجوری سے،
ایک جموں سے کوشش کی نا ایڈریس کرنے کی. جموں کا ڈپٹی چیف منسٹر ہے. اس بات کے باوجود کہ یہ میرے دادا کی حکومت کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ ایک ہی پارٹی سے سی ایم اور ڈپٹی سی ایم دونوں. اس سے پہلے جب ڈپٹی سی ایم بنتے تھے وہ الائنس کی مجبوری ہوتی تھی. مفتی صاحب پی ڈی پی کے تھے تو ڈپٹی سی ایم کانگریس کے تھے. پی ڈی پی کی چیف منسٹر تھی تو بی جے پی کا ڈپٹی چیف منسٹر تھا. میں چیف منسٹر تھا تو کانگریس کا ڈپٹی چیف منسٹر. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بنا کوئی کولیشن پریشر کے چیف منسٹر بھی اور ڈپٹی چیف منسٹر دونوں ایک ہی پارٹی کے. وہ اس لیے کہ ہم جموں کے لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ ہم آپ سے الگ نہیں ہیں, یہ آپ کی حکومت ہے. بے شک چیف منسٹر کشمیر کا ہے لیکن حکومت جموں کشمیر کی ہے. لائیں اسمبلی میں, ہم اس وقت بات کریں گے, ان کو یاد دلائیں گے کہ جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کیا کیا. بڑا آسان ہے سگنیچر کیمپین کرنا, اس وقت کیوں نہیں کیا جب ان کی حکومت تھی 3 سال. لیکن فی الحال اسپیکر صاحب نے ہم سب پہ یہ روک لگائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بلز فی الحال ہاؤس میں ایڈمٹ نہیں ہوئے ہیں ان پہ تبصرہ نہیں ہونا چاہیے. آ جائیں ہاؤس میں, ہم اس کا کھل کے بات کریں. پر شراب بندی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جموں کشمیر میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اسمبلی میں آپ بات آ جانے دیجیے, ہم بات کریں گے. اگر ہم نے اس پہ بات کرنی ہوتی ہم اپنے مینیفیسٹو میں ڈال دیتے. ان کے لیے تو کوئی بہتری نہیں آئی. اب دیکھیں آپ, مجھے پوری امید ہے کہ اسی سال ریاست کا درجہ بحال ہوگا. بات کر رہے تھے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ. سامعین, جموں کشمیر میں مسلسل 3 روز سے بارشوں اور برف باری کے بعد آج موسم میں بہتری آئی. کئی علاقوں میں دن کے وقت کھلی دھوپ دیکھی گئی. البتہ بالائی علاقوں میں بھاری برفباری کی وجہ سے سڑکیں بند پڑی ہیں, جبکہ کئی علاقوں میں بجلی سپلائی بھی متاثر ہے. جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں بھاری برفباری اور بارش کی اطلاعات ہیں. اس دوران کل سے تقریباً 8 افراد کی موت ہوئی ہے, جبکہ درجنوں رہائشی مکانات اور دیگر ڈھانچوں کو نقصان ہوا ہے. بارہمولہ سے کرامت قیوم نے خبر دی ہے کہ کل شام سے بارہمولہ قصبے اور دیگر علاقوں میں بجلی سپلائی متاثر ہے. یہاں تک کہ جی ایم سی بارہمولہ میں بھی کئی گھنٹوں بجلی معطل رہی. بتایا جاتا ہے کہ مقامی سطح پر مختلف محکموں کے درمیان تال میل کا فقدان ہے اور اس کے نتیجے میں بارہمولہ اوڑی اور دیگر کئی علاقوں میں کل سے بجلی سپلائی متاثر ہے. یہاں تک کہ بارہمولہ قصبے کے اندرونی گلی کوچوں اور لنک روڈز پر بھی برف نہیں ہٹائی گئی. پواڑہ سے فیاض حمید نے خبر دی کہ کرنا, کیرن, مچھل, بڈنمبل اور دیگر پہاڑی راستے تیسرے روز بھی آمد و رفت کے لیے بند رہے, جبکہ کرالپورہ, کچہما اور دیگر علاقوں میں بھی روزمرہ کی زندگی ٹھپ ہے. اطلاعات کے مطابق پونچھ کے کلائی علاقے میں گزشتہ دیر شام ایک زائلو گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر دریا میں جا گری اور اس کے نتیجے میں گاڑی میں 7 افراد کو شدید چوٹیں آئیں. 5 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں ڈاکٹروں نے 2 کو مردہ قرار دیا. مقامی ذرائع نے بتایا کہ حادثے کے بعد گاڑی میں سوار 3 افراد ابھی تک لاپتہ ہے اور ان کی بڑے پیمانے پر تلاش جاری ہے. ادھر جموں پونچھ شاہراہ پر تیز بارش کے بیچ بھاری برکم پتھر اسکارپیو گاڑی پر گرایا اور اس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 3 افراد شدید طور زخمی ہوئے. ذرائع کے مطابق زخمیوں کو طبی امداد کی خاطر نزدیکی اسپتال لے جایا گیا, جہاں پر ڈاکٹروں نے ایک کو مردہ قرار دیا. پونچھ کے بفلیاز میں ٹپر کو حادثہ پیش آنے کے نتیجے میں ڈرائیور کی موقع پر ہی موت ہوئی ہے. محلوق کی شناخت سرور خان ولد فیض اکبر ساکن بفلیا سرنکوٹ کے طور ہوئی ہے. اس سے پہلے گزشتہ شام ریاسی کے تلی علاقے میں ایک 13 سالہ لڑکا پوتر سنگھ نالا پار کرتے ہوئے پانی کے ساتھ بہہ گیا اور آج اس کی لاش برآمد کی گئی. اس دوران محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں درمیانی سے بھاری درجے کی برفباری ہوئی ہے, جس سے بیشتر مقامات پر معمول کی زندگی متاثر ہے. جنوبی کشمیر میں بھی بھاری برفباری کی خبریں ہیں. ادھر سرحدی قصبہ گریز میں آج دن بھر برفباری ہوئی. سادنا ٹاپ رازدان ٹاپ پر 5 فٹ کے قریب برف جمع ہوئی ہے, جبکہ زڈ گلی, زوجیلا پاس, گلمرگ, سونمرگ, پیر کی گلی, سنتھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ پر 3 فٹ سے زائد برف جمع ہونے کی خبریں ہیں. اس دوران محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد نے شہربین کو بتایا کہ آج سے 3 مارچ تک موسم مجموعی طور بہتر رہے گا. البتہ 3 مارچ کو ایک اور ہلکی برفباری اور بارش کا مرحلہ ہو سکتا ہے. آلریڈی ایکسپیکٹڈ تھا ایک وائڈ اسپریڈ بارشیں, برفباری, کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ ٹو ہیوی, پہاڑی علاقوں میں ہیوی ٹو ویری ہیوی, اور کچھ ایک میدانی علاقوں میں بھی تھا. کر کل 27-28 کے درمیان جو ہے ویری ہیوی بارشیں تک بھی ہوئی ہے, خاص کر ڈسٹرکٹ اودھمپور کے اندر. اور ابھی بھی انٹرمیڈیٹلی خاص کر چناب ویلی کے اندر ہلکی پھلکی بارشیں ہو رہی ہیں. یہاں ویلی کے اندر بھی تھوڑا سا لائٹ رین ہوا ہم دوپہر کے آس پاس. تو کمنگ ڈیز میں خاص کر 3 کو ایک بار پھر ایک فیبل ٹو ماڈریٹ WD کے چانسز ہیں. ہلکی سے لے کے درمیان
درمیان درجے کی बर्फबारी, खासकर पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिशें रह सकती हैं। एक जगहों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल है, कुछ 1-2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ सकता है, तो हैवी को रोल आउट नहीं कर सकते हैं कुछ एक जगहों के अंदर। और जम्मू के खासकर चिनाब वैली, यहाँ सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के भी पहाड़ी इलाकों में लगभग मॉडरेट स्नोफॉल के चांस हैं, खासकर 8 मार्च को। फिर 4 से लेकर लगभग 9 तक मौसम मजमूई तौर पर ड्राई रहेगा, खुश्क रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जो है कमिंग डेज में खासकर 10-11 के आसपास एक बार फिर थोड़ा सा वेट स्पेल के चांसेस हैं, तो कमिंग डेज में हम इसमें और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इसका इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि आज से 3 तक मौसम में बेहतरी रहेगी। 1-2 को ठीक रहने के चांसेस हैं, बाकी 2 शाम को जो है कुछ एक जगहों पे थोड़ा लाइट रेन टाइप एक्टिविटी होगा। 3 को जो है मौसम खराब ही है, 3 को जो है मॉडरेट स्नोफॉल भी हो सकता है कुछ एक जगहों पे, मॉडरेट टू हैवी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी 4th ऑनवर्ड पूरा ड्राई है लगभग 9। 3 मार्च को फिर एक बार हल्की बर्फबारी और बारिश की पेशगोई बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद। इस दौरान शहरी श्रीनगर में भी कल दोपहर से रात देर गए तक तकरीबन 2 से 3 इंच बर्फ जमा हुई। इधर इतलात के मुताबिक वादी के दीगर मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। आज वादी के बेशतर इलाकों में मामूल की जिंदगी मुतासिर रही, जबकि कई इलाकों में सड़कें भी बंद रहीं। अलबत्ता बेशतर सड़कों को बाद दोपहर आमदोरफ्त के लिए बहाल किया गया। इस दौरान महकमा तालीम ने सरमाई तातीलात में 6 मार्च तक इजाफा किया है और अब स्कूल 7 मार्च को तातीलात के बाद दोबारा खुलेंगे। इधर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हार्ड जोन इलाकों में 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के यकुम और 3 मार्च के इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। ये इम्तिहानात अब 24 और 25 मार्च को लिए जाएंगे। अलबत्ता साफ जोन इलाकों में पहले से जारी डेट शीट के मुताबिक इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस दौरान वादी कश्मीर में वसी पैमाने पर बर्फबारी के बायस आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ने आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए थे, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आज के इम्तिहानात हस्बे मामूल लिए गए हैं। समीन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मुसलसल बर्फबारी और बारिश के बायस आमदोरफ्त के लिए बंद की गई है, जबकि शाहरा पर चंद मकामात पर चट्टानें खिसकाने की खबरें हैं। बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की खबर है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को रामसू और गाजीगुंड के दरमियान बर्फ जम जाने और नाशरी और नौयुक टनल के दरमियान चट्टानी और मिट्टी के तूदे गिराने की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बटवुट डोडा रोड भी लागी नाला पर चट्टाने खिसकाने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद है। इधर उधमपुर में मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटा पत्थरों की जद में आने से जांबाक हुए हैं। इधर सोनावारी से मिली इत्तलात के मुताबिक बनियारी शार की गांव में आज एक 8 साल लड़की पांव फिसलने के नतीजे में जांबाक हुई है। इधर श्रीनगर ले शाहरा मुगल रोड, सिंधन टॉप, मरगन टॉप और चंबा बदरवा रोड मुसलसल बंद है। बानिहाल के बेशतर इलाकों की सड़कें बंद पड़ी हैं। महकमा आरएनबी और पीएमजीएसवाई ने आज सड़कों पर बर्फ हटाने का अमल आखिरी इतलात तक शुरू नहीं किया था, जबकि पूरे इलाके में बिजली सप्लाई मुतासिर है। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वजीर वकार सुलवानी ने शर्बीन को बताया कि मोहमंगत, नील, पोगल और दीगर रोड बंद पड़े हैं, बिजली सप्लाई मुतासिर है और मामूल की जिंदगी ठप है। उन्होंने इंतजामिया से फौरी तौर हरकत में आने का मुतालबा किया है। जी मकसूद साहब, पिछले 5-6 दिन से बहुत भारी बारिश हुई, बानहाल में भी, गूल में भी, मोहमंगत में भी, लेकिन रात से मुसलसल बर्फबारी हुई और बर्फबारी की वजह से काफी रोड भी बंद हुए हैं और रास्ते भी बंद हुए हैं, जिसमें हमारा मोहमंगत का इलाका है, बिमदासा का इलाका है, इसी तरह से नील और पोगल के इलाके हैं, सारे बंद पड़े हैं। अभी तक कोई उनमें मशीनें नहीं लगी, अभी तक खोला नहीं गया, क्योंकि आपको पता है कि परसों से रमजान का महीना जो है वो शुरू हो रहा है और मुबारक महीना, और लोगों को काफी परेशानी आ रही है इस मौसम में, क्योंकि बिजली भी बंद हो चुकी है। हर जगह फोन आ रहे हैं कि बिजली जो है, बिजली कल रात से ही बंद है, अभी तक भी रेस्टोर नहीं हुई है। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि रमजान का जो महीना है, पाक महीना है, इसमें बिजली को इमीडिएटली रेस्टोर किया जाए। बिजली रहनी चाहिए शहरी और इफ्तियारी में खासकर, और राशन का इंतजाम होना चाहिए, और खासकर ये जो रोड बंद पड़े हैं हमारे, खासकर मोहमंगत का, क्योंकि हमारे जो पंजाब मजदूरी करने लोग जाते हैं वो रोजों से पहले जो है वापस आ रहे हैं। आज से मौसम में बेहतरी लग रही है, तो क्या इंतजामिया मुतलका डिपार्टमेंट जो है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं? नहीं, जो दूर दराज इलाकों से मुझे खबर आ रही है, चाहे गूल के इलाके है, बिमदासा है, मोहमंगत के इलाके हैं, नील के इलाके हैं, वहां अभी तक जो है रोड सारे बंद पड़े हैं।
अभी तक रोड नहीं खोले गए हैं, लेकिन जो आगे पीछे के गांव हैं या नील इलाका है या मोहम्मद खड़ी का इलाका है, गूल के इलाके हैं, पोगल के इलाके हैं, इन सब से इतला मौसूल हुई है कि अभी तक जो है पोल और तारे गिरी है, बिजली अभी तक रेस्टोर नहीं हुई है। तो वही मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को आपका, क्योंकि पॉपुलर रेडियो स्टेशन है आपका, तो मैं चाहता हूँ वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को अपील जाए कि इमीडिएटली, क्योंकि रोज़ों का महीना है, मुतबरक महीना है, इसमें बिजली रहनी चाहिए, रोड क्लियर रहने चाहिए और हर एक इंतजाम जो जरूरत है लोगों को वो होना चाहिए। बानियाल की बेशतर सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद, बात कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वजीर वकार रसूलवानी। इधर कठवा से रमेश मराठा ने खबर दी है कि भारी पसी गिराने के नतीजे में बन्नी बसूली बदरवार रोड को आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। इधर मड़वा वड़वन में भी भारी बर्फबारी की खबरें हैं। मरगनटाप के अलावा मकामी सड़कें भी बंद पड़ी हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और डीडीसी मेंबर शेख जफरुल्लाह ने सरकार से मांग की है कि माहसम के पेश नजर मरगनटाप सड़क और अंदरूनी सड़कों को खोलने की कोशिश शुरू की जाए। भारी तादाद में बर्फबारी हुई और मैं समझता हूं कि अब जब बर्फबारी हुई तो स्नो क्लियरेंस जल्दी से स्टार्ट किया जाना चाहिए। मड़वा वार्ड 1 के जो लोकल रोड्स हैं उन पर भी मशीनरी डिपार्टमेंट की तरफ से जल्द डिप्लॉय की जानी चाहिए। और जो मरगन का रास्ता है वो ऐसा रास्ता है जो मड़वा वार्ड 1 के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है, तो उस पर मशीनरी जितना जल्दी हो सके डिप्लॉय की जानी चाहिए। प्रिडिक्शंस ऑलरेडी मिली थी कि इस दिन से इस दिन तक बर्फबारी होगी, तो मैं डिपार्टमेंट तक आपके जरिए से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे ही मौसम इम्प्रूव हो जाता है तो मशीनरी वहां डिप्लॉय की जानी चाहिए। लेकिन लास्ट टाइम भी हमने देखा जब बर्फ थी नहीं, ऊपर बहुत कम बर्फ थी, तो लेकिन डिपार्टमेंट ने कहीं न कहीं लापरवाही बरती और जिसकी वजह से मरगन का रास्ता बंद रहा। और अब जब भारी बर्फबारी हुई तो अब मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी ये सूचना थी और प्रेडिक्शन के हवाले से भी उनको मालूमात थी, मशीनरी डिप्लॉय की जानी चाहिए। और लास्ट टाइम जब ठेकेदारों ने लापरवाहियां की, मैंने खुद डिपार्टमेंट से बात की थी कि भाई आप इतना लेट क्यों करते हो और मरगन क्यों आपने बंद रखा, तो कहीं ये एक्सक्यूज मिला कि ऑपरेटर कहीं बाहर चला गया है, ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ये एक्सक्यूज दिया गया कि मशीनरी इस वक्त खराब है। तो ये सारा जो ठेकेदार को मालूम होना चाहिए, और अगर ठेकेदार कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसके पास ऑलरेडी सब तरह के इंतजामात होने चाहिए। लेकिन अगर उसके पास ये इंतजामात नहीं है या प्रॉपर मशीनरी उसके पास नहीं है, तो डिपार्टमेंट को ऐसे ठेकेदारों को कभी भी ठेका नहीं देना चाहिए और अलाउ नहीं करना चाहिए। तो शहरबीन जिस तरह से हमेशा इन इलाकों को रिप्रेजेंट करता आया है, उसी तरह से आज भी हमें आपसे उम्मीद है कि शहरबीन के वसाकत से ही ये आवाज आला हुकाम तक पहुंच जाए के खिलाफ। आपकी वसाकत से हम चाहेंगे कि स्नो क्लियरेंस जल्द हो, क्योंकि आगे माहसियाम का महीना भी है और परसों से स्टार्ट होने वाले हैं रोजे। तो मड़वा वार्ड 1 के काफी ऐसे एरियाज हैं जहां पर आज तिब्बी सहूलियात नहीं है, उनको अगर बीमार वहां पर कोई पड़ता है तो दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो जो स्नो क्लियरेंस है वो जितना जल्दी हो सके बेहतर होगा, लोगों की जिंदगी आसान होगी उससे। अभी आप देखेंगे कि वार्ड 1 का एरिया सुखनई तक फैला हुआ है, कुजुल तक फैला हुआ, मड़वा मैटवन तक फैला हुआ, देहरना हंजल तक फैला हुआ है। तो इन एरिया तक अगर स्नो नहीं हटाई जाती है तो फिर यकीनन लोगों को मुश्किलात में इजाफा होगा। माहसियाम के पेश नजर फौरी तौर मरगनटाप को काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए, बात कर रहे थे कांग्रेस के सीनियर लीडर और डीडीसी मेंबर शेख जफरुल्लाह। इस दौरान सरहदी कस्बा उड़ी से जफर इकबाल ने खबर दी कि बेशतर सड़कें आज आमदोरफ्त के लिए बंद है। मकामी आबादी ने आरएनबी और पीएमजीएसबी हुकाम के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया। गुज़श्ता शाम कलर घरकूट की एक खातून की मैयत को पैदल घर पहुंचाना पड़ा। मकामी आबादी ने इंतजामिया के रवैये के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इधर लंबर इलाके की सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद है। आज हालांकि मौसम में बेहतरी आने के बावजूद भी सड़क खोलने की कोशिश नहीं की गई। बाबागीर लंबर की आबादी सख्त परेशानियों का सामना कर रही है, जबकि पूरा लंबर नामला गरकोट तलकांजन बालकोट मैदानन और दीगर देहात दोरों से बिजली सप्लाई से महरूम है। बर्फबारी के नतीजे में बोनियार घरकूट और कमलकोट में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। शहरबीन जारी है। आपका फिर एक बार खैर मकदम। सोपोर से मिली इत्तलात के मुताबिक आरएनबी डिवीजन वतरगाम रफियाबाद कल शाम से ही मुतहर्रिक रहा और आज हब डांगरपोरा गांव में बर्फ हटाने का अमल जारी किया गया। बर्फबारी के बायस गांव की सड़कें बंद हो गई थी। मकामी आबादी ने आरएनबी सब डिवीजन वतरगाम रफियाबाद की काविशों की सराहना की है। इधर शोपियान से फयाज वाली ने खबर दी कि जिले में मामूलात जिंदगी आज ठप होकर रह गए। जिला हेडक्वार्टर पर आधी फुट से ज्यादा बर्फ जमा हुई थी, जबकि बाला इलाकों में 2.5 फुट तक बर्फ
बर्फबारी होने की खबरें हैं। जिले के कई इलाकों में बिजली निजाम मुतासिर रहा और कई सड़कों से अभी भी बर्फ नहीं हटाई गई है। किश्तवाड़, गुलमर्ग और अनंतनाग के कई इलाकों में बर्फानी तूंदे गिराने की इतलात है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देवी ने खबर दी है कि गुज़श्ता रात सिंहपोरा के एक नाले में बर्फानी तूंदे की जद में कुछ कोठे और एक घराट आया और वो ढह गए, जबकि बिजली की तारें और खंभे भी गिर गए हैं। अब एक और मौजू। सामिन, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के एक सीनियर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव गुलाम नबी मीर आज नौकरी से सबकदोश हुए। वो इस वक्त ऑल इंडिया रेडियो भद्रवा में तैनात हैं। वाज़ेह है कि गुलाम नबी मीर का ताल्लुक जिला कुपवाड़ा से है। पीडीपी लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने कहा कि रफियाबाद, जयनगीर, खासकर डंगी वच्चा और राहमा के बालाई इलाकों की सड़कें बंद पड़ी हैं और अभी तक बेशतर इलाकों में बिजली बहाल नहीं की गई है। अल्ताफ मलिक ने सड़कों से फौरी तौर बर्फ हटाने और बिजली बहाल करने का मुतालबा किया है, जबकि माह रमजान के पेश नजर राशन के साथ साथ सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली दस्तयाब कराने की भी अपील की है। आसारी शरीफ पिंजूरा शोपियान के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि माह रमजान के दौरान तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब कराई जाएं। उन्होंने सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली बिना खलल दस्तयाब कराने के साथ साथ गली कूचों और चौराहों के लिए रोशनी का इंतजाम करने की भी अपील की है, ताकि फजर और तरावी की नमाजों के दौरान लोगों को मसाजिद में आने जाने में दिक्कतें पेश न आएं। समीन शेख हफीज अख्तर, साबिक डीआईजी कश्मीर और लद्दाख और कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर सरकार सरमद हफीज के वालिद का इंतकाल हुआ है। मरहूम को आज रात ही आबाई कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार के कई अफसरान ने मरहूम की वफात पर दुख का इजहार करते हुए सरमद हफीज, डॉक्टर शिबली शेख, जुनैद महमूद और दीगर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है और मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की है। वादी के बुलंदपाया वली कामिल हजरत मीर सईद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अकीदत एहतराम के साथ आज पूरी वादी में मनाया गया और उसकी तकरीबात का आगाज 27 फरवरी को नरपरिस्तान में बाद नमाज ज़ोहर तिलावत कुरान मजीद से हुआ और इसके साथ साथ वहां पर खत्मात मुअज़्ज़मात, जिक्र अज़कार और दुरूद सलाम की रूह परवर मजालिस भी मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत बुकिया आलिया के सजादा नशीं और हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला सईद अब्दुल हमीद हक्कानी ने अंजाम दी। इधर पीराने पीर हजरत सईद कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत आज पूरी जम्मू कश्मीर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में जियारत पीर दस्तगीर साहब खानियार, सराय बाला, नादी हल बांडीपोरा, शोपियान पिंजूरा, अहम शेरी बांडीपोरा और दीगर खानकाओं और बुकाजात में खुसूसी मजालिस का एहतमाम रहा। साबिर वादी कश्मीर में आतिशज़दगी की वारदातें लगातार हो रही हैं। बांडीपोरा के हाजिन इलाके में आतिशज़दगी की एक होलनाक वारदात में 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अक्सर हुई हैं, जबकि एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। जरा ने बताया कि हाजिन के शेख मोहल्ले में गुज़श्ता शब एक दुकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने कई ढांचों को अपनी लपेट में लिया और इस वारदात में 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक दुकान को नुकसान पहुंचा है। इधर गुज़श्ता रोज ब्रेन निशात और रथपोरा वनियार में भी एक गेस्ट हाउस और एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है, जबकि टांकनवाड़ी, मुजगुंड और छानपुरा श्रीनगर में भी एक रिहायशी मकान और एक दुकान आग की नजर हुए हैं। इस दौरान एमएलए बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट ने सरकार पर जोर दिया है कि वह अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दें और जरूरी खिदमात खासतौर पर बिला खलल बिजली और पानी की फराहमी के लिए इंतजामात करें। उन्होंने हुक्मरानी में जवाबदेही और शफाफियत पर जोर देते हुए कहा है कि आवाम को गैर जरूरी ताखिर या नौकरशाही की मुदाखलत के बगैर वो खदमात हासिल होनी चाहिए जिनके वो हकदार हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देवी ने खबर दी कि मड़वा के कई इलाकों में तिबी सहूलियात की कमी पर आवाम में तशवीश है और मकामी अफराद का कहना है कि मड़वा में तैनात तिबी अमले की मौजूदगी इंतहाई कम रहती है और यहाँ सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना रहता है। कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है और कुछ को फौरी तौर पर किश्तवाड़ मुंतकिल करना पड़ रहा है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कुछ मुलाजमीन ने बीमार अफराद और उनके तीमारदारों के साथ तलक कलामी भी किए, जिससे आवाम में गुस्सा पाया जा रहा है और मकामी लोगों का मुतालबा है कि मरीजों की मुंतकिल के लिए फौरी तौर इंतजामात किए जाए और मड़वा में तैनात तिबी अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए और साथ ही मुलाजमीन को जवाबदेह रखा जाए। जेएनके वेलफेयर सोसाइटी एंड पेंशनर्स ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल अलाउंस को 300 से 1500 किया जाए, क्योंकि अद्वियात और इलाज मुआलजे के अखराजात में काफी इजाफा हो चुका है। सभी जम्मू कश्मीर में पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं और तवक्को की जा रही कि अप्रैल और मई में पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात मुनक्कद किए जाएंगे। इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि आने वाले
बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू करे और कहा कि हर सतह पर मुयस्सर हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए नौजवान और तालीम याफ्ता उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाना लाजमी है। उन्होंने पार्टी में जल्दी मेंबरशिप मुहिम